Jain friends, welcome to Kalyani IAS Academy. We are studying basic principles of physics. In this lecture, we will study force. Now start the lecture and understand what is force. See, force is an external factor that can change the shape of an object. Suppose you are having a rod, right? You are having a rod, and if you apply a process on both these sides, तो ये जो रॉड है वो इस तरीके की क्या हो जाएगी, टर्न हो जाएगी, राइट? सो इफ यू टेक द रॉड, राइट, प्रेशर और अप्लाई फोर्स, राइट, अलोंग विद द एंड्स ऑफ द रॉड, तो वो इस तरीके से क्या हो जाएगी, जो रॉड है वो टर्न हो जाएगी. तो इस तरीके से जो फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को क्या कर देता है, चेंज कर देता है. फॉर एन एग्जांपल, दिस इज वाटर. इफ आई अप्लाई वाटर, तो इससे शेप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. सेकेंड, size, right? If we stretch an object, then definitely the size of that object may change. Then state of an object. For an example, if the box is kept here, right? There is a box which is kept here, right? If you apply a force from here, right? If you apply a force from here, then definitely ये जो अभी rest state में है, right? If you apply force, then it will begin to move, और ये कौन सी state में आ जाएगा, motion state में आ जाएगा. या simply we can say that this is a car, right? When you start your car, तो जो कार का इंजन होता है, right? वो इंजन होता है, right? So when you start your car, engine applies the force, and because of the force applied by engine, your car, right, starts to move. या इन द सेम वे अगर हम ये कहें कि जैसे मैंने कहा कि ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर रेलगाड़ी हो जाएगी, राइट, रेलगाड़ी हो जाएगी. अब ये जो रेलगाड़ी है, राइट, द ट्रेन इज अप्रोचिंग इन दिस वे. when the driver will apply the brake, तो जब ब्रेक हर जगह पर क्या होगा, ऑन एवरी, द ब्रेक वुड अप्लाई ऑन एवरी व्हील, तो उससे द मूविंग ट्रेन, राइट, और वी कैन से द ट्रेन विच इज इन मोशन स्टेट, राइट, वुड बी इन रेस्ट स्टेट आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक, राइट, आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक. क्लियर? तो ब्रेक की वजह से ही क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन की वजह से ही फोर्स अप्लाई होगा, एंड बिकॉज ऑफ this frictional force, the train which is in motion state will be in rest state, right? So in this way simply we can say that force is an external factor, right? Force is an external factor that can change the shape, size or state of motion, right? If the object is in rest state, तो वह motion state में आ जाएगा, और if the object is in मोशन स्टेट, तो ऑब्जेक्ट जो है वो किस में आ जाएगा, रेस्ट स्टेट में आ जाएगा. सो सिंपली वी कैन से दैट फोर्स इज एन एक्सटर्नल फैक्टर दैट कैन चेंज द शेप, साइज और स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट. एंड इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड द लॉ ऑफ इनर्शिया, right? We can define the force on the basis of law of inertia. So the definition of force on the basis of inertia. Force is that external factor that changes or tries to change the initial state of an object. Clear? Force is vector quantity, and the formula is given from the second law of motion, F into ma. Here m is equals to kg, acceleration meter per second square. Therefore the unit of force is kilogram into meter per second square, and this is known as Newton, right? So kilogram into meter per second square is also known as Newton. And what is the definition of 1 Newton? See, if we apply force on, if we apply force on the object having 1 kg mass, and if 1 meter per second acceleration is produced,
तो उसको ही क्या कहा जाएगा, 1 न्यूटन फोर्स कहा जाएगा। तो सिंपली जैसे मैंने कहा कि दिस इज ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg, तो यदि किसी 1 kg मास वाले ऑब्जेक्ट पर यदि हम फोर्स अप्लाई करें और उस ऑब्जेक्ट में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का जो है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है, तो उस फोर्स को ही क्या कहा जाएगा, राइट, 1 न्यूटन फोर्स कहा जाएगा। फॉर एन एग्जांपल जो है, प्लेयर मूव्स द फुटबॉल बाय अप्लाइंग फोर्स केप्ट इन द स्टेशनरी। अगर फुटबॉल रखी हुई है और अगर हम उसको क्या करें, हमारे फीट से फोर्स अप्लाई करें, तो वो क्या हो जाएगी, मूविंग हो जाएगी, राइट। तो ये हमने यहां पर किसको समझ लिया है, फोर्स को समझ लिया है, राइट। नाउ वी विल स्टडी ग्रेविटेशन फोर्स। व्हाट इज ग्रेविटेशन फोर्स? See, the force acting between two bodies located in the universe is known as gravitation force. Let's say these are the two bodies, and the force of attraction between these two bodies is known as gravitation force. और जो gravitation force है ये यूनिवर्सल होता है, विच मीन्स इट इज नॉट नेसेसरी कि ये पर्टिकुलर ए और बी ऑब्जेक्ट के, राइट, दिस फोर्स would apply between the A and two object, A and B object. This is universe. इसीलिए इस यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल और जितने भी ऑब्जेक्ट जिनमें क्या है, मास है, उन ऑब्जेक्ट के बीच में हमेशा एक अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है, और अट्रैक्शन फोर्स होता है उसे ही क्या कहा जाता है, ग्रेविटेशन फोर्स कहा जाता है, राइट। सो द फोर्स एक्टिंग बिटवीन, right, the force acting between any two bodies, right, the force acting between two bodies located in the universe is known as gravitational force, and this force is universal, which means every particle feels this force because of the mass. Also, this is the weakest force among all the नेचुरल फोर्सेस। अब नेचुरल फोर्सेस कौन कौन से होते हैं, राइट। जो नेचुरल फोर्सेस होता है उसमें एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, देखिए, तो जो हमारी नेचर है, राइट, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फोर्स इन दिस नेचर। द फर्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, राइट, द फर्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, देन strong nucleus force, then weak nuclear force, and fourth is gravitational force. So simply we can say that the force acting between two bodies located in this universe is known as gravitational force, and this is universal force, and this acts between two particles or two objects because of their mass. और ये नेचर में पाए जाने वाले जो नेचर में जो 4 फोर्सेस पाए जाते हैं, राइट, उनमें वीकेस्ट होता है। सो दिस इज द वीकेस्ट फोर्स अमंग ऑल द फोर्सेस, एंड इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, राइट, बिकॉज जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, राइट, दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव एज वेल एज, राइट, तो ये अट्रैक्टिव इन नेचर भी होता है, साथ ही साथ ये रिपल्सिव इन नेचर भी होता है। फॉर एन एग्जांपल, लेट्स से देयर आर 2 आयंस, right, one is positive ion and another is positive ion. So if both are the positive ions, then they would repel each other, but if there are 2, first is negative ion and second is positive ion, so they will attract each other, right. और अगर सेम आयन है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपील करेंगे, राइट। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज in repulsive as well as attractive in nature, whereas this gravitational force is attractive in nature, right. Now we will study Newton's law of gravitation. देखिए, before Newton, Indian mathematician Brahmagupta had told before the Newton that all objects are gravitationally attracted toward the earth, right, क्योंकि अर्थ में भी क्या होता है, मास होता है, और जो जितनी भी ऑब्जेक्ट है उनमें भी क्या होता है, मास होता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस अट्रैक्शन फोर्स एवरी ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द अर्थ।
बट उन्होंने इस फोर्स के बारे में, इसको जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसका ना तो फॉर्मूला प्रोवाइड किया था और ना ही इसके मैथमेटिकल कैलकुलेशन किए थे। बट एक तरीके से जो बेसिक आइडिया था दैट वाज propounded by Brahmagupta. So the Indian mathematician Brahmagupta had told before the Newton that all objects are gravitationally attracted toward the earth. But later Newton proved this law of gravitation and mathematically explained. And Newton first stated in 1686 that every body in this universe attracts each other, right? Each other, right? Or we can say that Newton first stated in 1686 that every body in this universe attracts, right, each other, or everybody in this universe attracts another body toward itself because of mass, and therefore the earth pulls every body or an object toward its center because of this gravity, right? तो ये सीधा से है कि everybody in this universe attracts another body toward itself because of mass. Therefore अर्थ में जो मास होता है, इसी की वजह से अर्थ किसी दूसरी बॉडी को अपने सेंटर की ओर क्या करती है, पुल करती है, राइट? और इसी फोर्स को क्या कहा जाता है, ग्रेविटी कहा जाता है, राइट? और दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसको ही ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है, राइट? एंड द थ्योरी, और वी कैन से दैट द आइडिया फर्स्टली वाज propounded by ब्रह्मगुप्ता. लेटर न्यूटन ने इसको मैथमेटिकली प्रूव किया था और इसको एक्सप्लेन भी किया था इन 1686, राइट? एंड इन 1686 Newton proved that every body in the universe attracts another body toward itself. And what is the law of gravitation? So according to Newton, the force of attraction between two bodies or two particles, so the force of attraction between two bodies or two particles is proportional to the product of their masses and is inversely proportional to the distance between them, is known as the law of gravitation. Let's say here one object, right? This is the body 1 or particle 1 having mass 1 and this is the body second having mass second. और ये चूंकि क्या होता है, सेंट्रल फोर्स होता है, तो जो इसका जो मास सेंटर होता है वहाँ से हम जो है पूरा पूरा करते हैं. एंड द डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ का इसका जो मास होगा तो यहाँ पर ही. तो लेट्स से देयर आर टू बॉडीज हैविंग मास m1 m2 and the distance between them is d. Then according to Newton's law of gravitation, the force of attraction between any two particles is proportional to the product of their, right, product of their masses m1 into m2. This is equation first. And according to law of gravitation, right, the force between two particles is inversely proportional to the square of the distance between them, right? So the distance is d and d square. This is equation second. If we sum of these two equations, then f is equals to m1 into m2 upon d square, right? So this is the formula, right? Now if we will remove the sign of proportion, then definitely एक constant value आएगी और उस constant value को ही क्या कहा जाता है, gravitational constant कहा जाता है, m1 m2 upon d square. So here जो g है, capital G, this is a constant value, right? So let's understand the universal gravitational constant, right? So we know that f is proportional to m1 into m2 upon d square. When we remove this sign, then definitely a constant value g comes m1 into m2 upon d square, and this is known as universal gravitational constant. So capital G, right, capital G is the universal gravitational constant. Now what is the unit of gravitational
universal gravitational constant? So it is very simple, right? We using this formula we will get the unit of this, right? So F equals to G m1 into m2 upon d square, right? If B put G, then D का मल्टीप्लाई किससे होगा? F इंटू डी स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। अब हम यहाँ पर जो है यूनिट लिख सकते हैं। F के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? न्यूटन, राइट? देन डी स्क्वायर, डी इज हियर डिस्टेंस विच मीन्स मीटर स्क्वायर अपॉन kg, राइट? फिर मास m2 के लिए फिर क्या हो जाएगा? kg। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ दिस universal gravitational constant, right? So G is a constant which is known as universal gravitational constant whose value is 6.67 into 10 to the power 11 Newton into meter square upon kg square. So this is the unit, right? जिसको हमने यहाँ पर derive किया था। तो MCQs के लिए आपको याद रखना है what is the unit of यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो सिंपली इसको हम इससे निकाल सकते हैं। तो द यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी? द वैल्यू ऑफ जी इज, राइट, 6.67 इंटू 10 टू द पावर minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, एंड दिस वैल्यू वाज फर्स्टली determined by Henry Cavendish. So the value of G was determined by Henry Cavendish, right? और यदि हम इस फॉर्मूले में m को कितना एज्यूम कर लें? 1 kg, राइट? m2 को भी कितना? 1 kg, d को कितना एज्यूम कर लें? d1, right? If m is equals to 1 kg, m2 is equals to 1 kg, d equals to 1 kg, thus the force between this two objects would be F equals to G, राइट? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, राइट, द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट एक्ट्स बिटवीन द टू पार्टिकल्स ऑफ यूनिट मास प्लेस्ड एट अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। तो जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर? एफ के इक्वल्स, राइट? सो द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट एक्ट्स बिटवीन द particles of unit mass placed at a unit distance from each other। और ये कैसी होती है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? m माइनस एल की पावर थर्ड एंड t माइनस का 2, एंड दिस वाज डिटरमाइंड बाय हेनरी कैवेंडिश, राइट? एंड दिस इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर? नाउ लेट्स से द ग्रेविटेशनल फोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, और यहां से एमसीक्यूज जो हैं पूछे जाएंगे। व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स? द फर्स्ट इज, राइट, ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स इज द म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स, which means if there are two objects having mass m1 and m2, then both objects would attract each other। ऐसा नहीं कि केवल और केवल m1 जो ऑब्जेक्ट है वो m2 को अट्रैक्ट करेगा, नहीं, दोनों ऑब्जेक्ट क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज द म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स। दिस इज द रीजन दैट द मून एक्सर्ट्स द सेम फोर्स ऑन द अर्थ एज द अर्थ ऑन द मून। सेकेंड, ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द सर्कुलर मोशन अराउंड द सन। और इसी की वजह से ही जो अर्थ है या जो मून है, राइट, या जो अर्थ है या जो वीनस है, मार्स है, ये एक जो है सारे के सारे जो जितने भी प्लैनेट्स हैं वो अर्थ के जो सन के चारों ओर घूम पाते हैं। सो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन अराउंड द सन। एज अ रिजल्ट जो अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स हैं डू नॉट fall into the sun। In the same way, the earth provides centripetal force for the moon because of this gravitational force, and therefore the moon does not fall into the earth। Third is the gravitational force
इज ऑफ यूनिवर्सल नेचर। यूनिवर्सल नेचर का मतलब क्या हुआ कि दिस ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क्स बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑफ हैविंग मास, और ये सभी पार्टिकल्स पर वर्क करता है, देयरफॉर दिस इज यूनिवर्सल इन नेचर, right? This is universal in nature. Then this force is always of attractive, मैंने बताया था electromagnetic force has tendency of both, right, repulsive and attractive, but ये हमेशा जो है कैसा होता है, attractive in nature होता है. It is a centripetal force, right? Centripetal force which acts on the centers of masses of an object, right? तो यहाँ पर अर्थ का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है और इसका मास यहाँ है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसके बीच में हमेशा ये कार्य करता है, right? The value of force does not depend on the medium between the bodies, and this force also applies to both stationary object as well as the moving ऑब्जेक्ट. चाहे कोई ऑब्जेक्ट मूविंग हो या स्टेशनरी हो, उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, अप्लाई होता है. नाउ लेट्स स्टडी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज स्मॉल जी, राइट? ये इन दोनों को आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये जो है अभी हम इन दोनों में रिलेशन को अच्छे से समझेंगे, राइट? सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अब इसको तो हमने अभी समझा है. देखिए व्हाट जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होता है कि देखिए एवरी पार्टिकल्स इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अनदर ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट, एंड दिस फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स. एंड अर्थ इज हैविंग मास, एंड बिकॉज ऑफ दिस मास अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी पार्टिकल टुवर्ड्स इटसेल्फ, और इस फोर्स को ही क्या कहा जाता है, ग्रेविटी कहा जाता है. इसको क्या कहा जाता है, ग्रेविटी कहा जाता है. या हम सिंपली कह सकते हैं कि अर्थ अट्रैक्ट्स डिफरेंट बॉडीज और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड द सेंटर, राइट? सो फोर्स ऑफ अट्रैक्टिव नेचर एक्ट्स ऑन द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट, राइट? तो यहां पर जो है ग्रेविटी की वजह से क्या करती है, अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करती है. अब ये जो हमेशा जो अर्थ पुल करती है कैसा होता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है, राइट? और अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या है अर्थ की ओर फॉल हो रहा है, जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पर सिचुएशन लेते हैं कि दिस इज अर्थ एंड ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग, राइट? तो अब देखिए अर्थ तो अपने मास की वजह से इस ऑब्जेक्ट को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, और ये ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, दिस ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग. तो बिकॉज ऑफ दिस attraction force the velocity of object starts increasing, right? और चूंकि velocity जब start increasing होगी, so there would be rate of change in the velocity, और उससे ही क्या होगा, acceleration produce होगा, और हम कह सकते हैं कि acceleration arises in the object, and this acceleration is known as acceleration due to gravity. सिंपली, और इसको किससे डिनोट किया जाता है, जी के. सिंपली को किससे करते हैं, ए से, राइट? तो सिंपल क्या है, सिंपली हम कह सकते हैं कि द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड द सेंटर, सो अ फोर्स ऑफ अट्रैक्टिव नेचर एक्ट्स ऑन द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट, राइट? बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, the acceleration arises, and this acceleration is known as acceleration due to gravity. And if an object is freely falling toward the earth, then the increase in the velocity of object in 1 second is known as acceleration due to gravitational या gravity g. तो कुल मिलाकर हम ये भी कह सकते हैं कि if a object is falling toward the earth and उसकी ग्रेविटी की वजह से अर्थ, राइट, सो ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग टुवर्ड द अर्थ, एंड बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ऑफ अर्थ द वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस, सो द इंक्रीज इन द वेलोसिटी इन 1 सेकेंड इज नोन एज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और इसकी ये ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड ही होती है, एंड दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, and its direction is always toward the center of the earth, right? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है मीटर पर सेकेंड, राइट? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट? एक्सेलरेशन
m एल टी माइनस का 2 और इसकी जो एवरेज वैल्यू होती है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड होती है. नाउ वी विल सी द अफेक्ट्स due to gravity. Actually we will study this later. At first we will see the relationship between G and G. What is it? See, capital G is the universal, right? I will show you. Capital G is the universal gravitational constant. So universal gravitational constant is capital G. Then acceleration due to gravity is small g. Now we will study the relationship between capital G and small g. अब उसके लिए जैसे हमने मान लिया कि लेट्स द मास ऑफ अर्थ इज me और अर्थ की रेडियस कितनी है r, तो ra. So let's the mass of earth is me and radius of earth is re. An object जिसका मास कितना है m, right, situated at some height above the earth plane, then the force of attraction exerted by the earth on object. So the force of attraction would be, right, F. अब हमें पता है कि वो दोनों पार्टिकल्स के मास के, right, we have studied in the law of gravitation, right. So according to Newton's law of gravitation, the attraction force between the two particles is the the proportional to the product of their masses. So here me into the mass of object and is inversely proportional to the distance between them. तो यहाँ पर distance कितनी है, re का स्क्वायर हो जाएगा और जब इसको हटाएंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा g. So we will get the equation of F equals to g me into m upon re का स्क्वायर, and this is equation first. Now it is because of this gravitational force, right, जो gravitational acceleration है ये ऑब्जेक्ट में क्या होता है, प्रोड्यूस होता है. तो इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, दैट इज g. देयरफॉर F इक्वल्स टू ma की जगह पर क्या होगा, g होगा. दिस इज इक्वेशन सेकेंड. नाउ बोथ इक्वेशन is having force, so we would put these mg equals to g me square into m upon re का होल स्क्वायर. तो यहाँ पर m से m कैंसल आउट हो जाएगा, राइट, और g इक्वल्स टू कितना बचेगा, g इक्वल्स टू g me का स्क्वायर me अपॉन re का स्क्वायर, right. So this is the relation between small g and capital G, right. Or it is clear from the above equation that the value of acceleration due to gravity does not depend on the weight of an object. तो यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ g है वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करती ही नहीं है, right. So it is clear that the value of g does not depend on the mass of an object. G is equals to g into mass of earth upon the radius of earth का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा. और इसको हम यहाँ पर जो है यहाँ पर समझेंगे, राइट, यहाँ पर समझेंगे. देखिए ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो ग्रेविटी की वैल्यू में चेंज क्यों आता है उसको भी हम यहाँ पर समझेंगे. सी वी हैव स्टडीड द रिलेशनशिप बिटवीन जी एंड कैपिटल जी. सो द वैल्यू ऑफ जी डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, देन मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ द अर्थ. दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी. अब इसी फॉर्मूले के आधार पर हम इस पूरे के पूरे समझेंगे, राइट. सो चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सी द फर्स्ट इज द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड. और ये स्टैंडर्ड वैल्यू है जो कि कहाँ पर पाई जाती है, एट सी लेवल at 45 degree latitude, right. And this has been asked in various examination, right. So the standard value of
g is 9.8 meter per second square, right? Meter per second square is meter per second square at sea level at 45 degree latitude, right? 45 डिग्री लेटीट्यूड। तो ये अर्थ की जो 45 डिग्री लेटीट्यूड होती है और सी लेवल पर, वहां पर स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी होती है? 9.8 होती है, राइट? अब अगर हम इसके जो वैल्यू में चेंजेस क्या होते हैं उसको समझें, तो सबसे पहली चीज क्या है कि द वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ सरफेस इज द लोएस्ट एट द इक्वेटर। क्यों? क्योंकि अब यहां पर समझना, अब आपको यहां पर अर्थ का जो साइज है उसको समझना पड़ेगा। सी दिस इज आवर अर्थ, और यहां पर जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएंगे? पोल हो जाएंगे। और जो अर्थ की मैक्सिमम रेडियस है वो कहां पर है? इक्वेटर पर है। और पोल्स पर हमारी जो अर्थ है, राइट, यहां से लेकर यहां तक जो है ये 21 किलोमीटर क्या होती है? लेस होती है, राइट? सो द रेडियस टुवर्ड द पोल इज 20 किलोमीटर, 21 किलोमीटर लेस। या हम कहें कि हमारी जो अर्थ है वो क्या है? फ्लैटेंड है। तो अब समझिए यहां पर जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो 9.8 होती है, बट जो मिनिमम है वो कहां पर पाई जाती है? इक्वेटर पर, बिकॉज देयर इज हाईएस्ट रेडियस, बिकॉज देयर इज अ हाईएस्ट रेडियस एट द इक्वेटर। और अगर रेडियस ज्यादा होगी तो जी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो हम सीधा कह सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ सरफेस इज लोएस्ट एट द इक्वेटर, क्योंकि इक्वेटर पर रेडियस क्या होती है? मैक्सिमम होती है। उसी तरीके से द वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ सरफेस इज हाईएस्ट एट द पोल्स, क्योंकि पोल्स पर जो रेडियस है वो 20 किलोमीटर लेस होती है, इसलिए पोल्स पर जी की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी, राइट? इफ द अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग, यदि अर्थ जो है रोटेट होना क्या हो जाती है? बंद हो जाती है, तो वैल्यू ऑफ जी विल इंक्रीज। ये दो फैक्टर याद रखना है आपको। इफ द अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग, तो उस केसेस में जो वैल्यू ऑफ जी है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। इफ अर्थ स्टार्ट्स रोटेटिंग मोर रैपिडली, तो वैल्यू ऑफ जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। इफ अर्थ स्टार्ट्स रोटेटिंग 17 टाइम फास्टर देन इट करंटली इज, then the weight of object placed on the equator will be appear to 0, right? साथ ही साथ the value of g decreases on going above the earth level, right? अब देखिए अगर आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने की ओर कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली जो है डिस्टेंस क्या होगी? इंक्रीज होगी। और डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर कम हो जाएगी। तो जैसे ही हम जो है अर्थ के सरफेस से ऊपर की ओर जाते हैं तो जो जी की वैल्यू है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। आल्सो द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज ऑन गोइंग डाउन फ्रॉम द अर्थ्स प्लेन, राइट? अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस जो जी है वो जीरो भी हो जाता है। कब हो जाता है? राइट, व्हेन फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी और इफ द रोप इज ब्रोकन, या सिंपली यू आर इन अ लिफ्ट, राइट, एंड योर लिफ्ट इज गोइंग डाउनवर्ड, और अचानक से अगर लिफ्ट की जो रोप है वो ब्रेक हो जाए तो आपकी जो पूरी की पूरी आपकी जो लिफ्ट है, लिफ्ट में अगर आप होंगे तो आपकी जो है वेट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उन दिस केस में आपका जो है जी जीरो हो जाएगा, राइट? और जी जीरो होने की वजह से आपका वेट भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। सो अंडर सर्कमस्टेंसेस जी इज फेल टू बी जीरो व्हेन फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, और इफ, तो जब जो ग्रेविटी में फ्री फॉल हो रहा है, राइट, व्हेन फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, तब जी की वैल्यू जीरो हो जाती है। और इफ द रोप इज ब्रोकन, तब जी की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। तो इन दिस वे वी हैव अंडरस्टूड the change in the value of acceleration, right? Now we will study the effect of acceleration due to gravity. Now you would come to know this. See, if objects of different weights are dropped from the same height, right, तो हमने देखा है कि the value of g does not depend on the
does not depend on the mass of object, right? So if object of different weights are dropped from the same height, then they will reach the earth simultaneously due to falling down with the same acceleration, right? तो यहाँ पर आप समझिए कि जो ऑब्जेक्ट का मास है वो ग्रेविटी को इफेक्ट नहीं करता, इसीलिए साइमल्टेनियसली ही पहुंचेंगे, राइट? परंतु हमें यहाँ पर एटमॉस्फेयर को क्या मानना पड़ेगा? नेग्लिजिबल मानना पड़ेगा, राइट? क्योंकि क्यों, उसको भी मैं समझाता हूँ। जैसे क्या होता है कि यदि आप, इफ यू आर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, तो आप नीचे की ओर गिरते जाएंगे सेम स्पीड से, बट यू हैव पैरासूट, राइट? आपके पास में पैरासूट है, तो पैरासूट क्या करेगा, यहाँ पर पैरासूट का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और जो एयर है, एयर जब इस पूरे के पूरे जो पूरा का पूरा जो एरिया है, भाई एयर तो आपका क्या कर रही है, रेजिस्टेंस कर रही है ना, राइट? यू आर फॉलिंग डाउन, बट जो एयर है वो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स आपको क्या कर रही है, रोकने का प्रयास कर रही है। तो जब सरफेस एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो उसकी वजह से जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा हो जाएगा तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, या आप अर्थ पे ही जो है, अर्थ पर ही नहीं रहेंगे, आसमान में ही जो है तैरते रहेंगे, जैसे काइट जो है फ्लाई करती है, राइट? तो इसीलिए अगर हम जो है फ्रिक्शनल फोर्स को जीरो मानते हैं, तब जाकर ये तीनों की तीनों जो वॉल हैं वो सेम पर आएंगी। और अगर फ्रिक्शनल फोर्स होगा तो उसकी वजह से सीधी सी बात है, जिसका एरिया ज़्यादा होगा, जिसका जो एरिया ज़्यादा होगा उस पर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा लगेगा और वो सबसे लेट पहुंचेगी। क्लियर? सो इन दिस वे you have understood. So simply we can say that if objects of different weights are dropped from the same height, they will reach the earth simultaneously because due to falling down with same acceleration. Acceleration तो क्या होगा, सेम होगा, जो कि ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता है, यदि हम फ्रिक्शनल फोर्स को जो है जीरो मान लें, right? Also if equal sized piece of wood, iron and wax are dropped on the earth from the same height, then under the ideal condition all the pieces will reach the earth simultaneously. तो ideal condition में तीनों simultaneously पहुंचेंगी, right? Because जो acceleration है वो सब पर एक समान वर्क करता है, right? So in this way we have studied relationship between G and capital G and small g. We have understood change in the value of G. Now the two topics which are related to this we will study. The first is mass and their second is weight. What is the difference between mass and weight? We would understand. What is mass? See, matter contained in the body is known as mass. जैसे ये मार्कर है, इसमें जितना भी मैटर कंटेन है वही इसका क्या कहलाता है, मास कहलाता है. सो मैटर, राइट, मैटर कंटेन इन द बॉडी इज नोन एज मास एंड द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड ऑफ इट्स इनर्सिया. जो मास है वो इसकी इनर्सिया का ही क्या है, मेजर है. द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्सिया. इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से. ऐसा यूनिट क्या है, केजी है. The mass of object remains constant and does not change from place to place, right? Whether वो body कहाँ पर हो, अर्थ पर हो, मून पर हो या फिर किसी मंगल ग्रह पर हो, right? तो the mass of object remains the constant whether the body is at earth, moon as well as the Mars. जो है mass हमेशा क्या रहता है, constant रहता है. Now let's study the weight. What is weight? The weight of object is the force with which it is attracted to the earth. It simply means that कि weight का मतलब उस ऑब्जेक्ट में कितना मैटर है वो नहीं है, राइट? वेट जो है वेट का मतलब होता है द फोर्स, राइट? सो द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स. और कितना फोर्स, जितने फोर्स से पृथ्वी उसको अपनी ओर क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, राइट? So the weight of an object is the force with which it is attracted to the earth, which means the force of attraction is known as the weight. So the weight of an object in the weight of an object is the force with which it is attracted to the earth.
The weight of a body on the earth is equal to the force with which the earth attracts that body, right, toward itself, and it is denoted by W. इसकी SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन. क्यों? क्योंकि ये क्या है? फोर्स है, इसलिए इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है, राइट. एंड वी नो दैट कि जो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू ए होता है. बट यहां पर जो एक्सेलरेशन है वो किसकी वजह से होगा? ग्रेविटी की वजह से होगा. देयरफॉर F इक्वल्स टू क्या होगा? m इंटू जी. एंड यही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यही क्या होगा? W या वेट. सो वेट W इज इक्वल्स टू m इंटू जी, राइट. सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ऑफ द ग्रेविटी इज g. सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वुड बी F इक्वल्स टू mg, और इसलिए वेट भी क्या होगा? m इज इक्वल्स टू जी. और इसकी SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है. तो यहां पर जो मास है, मास क्या होता है? द मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी इज नोन एज मास, एंड मास हमेशा कांस्टेंट होता है, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अर्थ पर हो, मून पर हो, या किसी भी अनदर प्लैनेट पर हो. बट वेट क्या होता है? द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द अर्थ. या हम कहें कि अर्थ पर वेट क्या होगा? द वेट ऑफ अ बॉडी ऑन अर्थ इज इक्वल टू द फोर्स with which the earth attracts that body toward itself. और W इक्वल्स टू क्या होता है? m इंटू जी. इसीलिए जो वेट है वो चेंज हो जाता है, राइट. जैसे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो अर्थ पर कुछ और होगा, जब उसको हम जो है मून पर ले जाएंगे तो मून उसको अलग जो है उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींचेगा, इसलिए क्या होगा? डिफरेंस होगा, राइट. सो इट इज क्लियर दैट द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन इट्स mass and gravitational acceleration, right. So it is clear that the weight of an object depends on mass and gravitational acceleration, not on other quantity, right. अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मून की, तो the mass of moon is less than that of earth. Therefore due to this moon exerts less force of attraction than on the object than earth. So due to this moon exerts less force of attraction on the object as comparison to earth. तो चूंकि अर्थ का वेट ज्यादा है इसलिए अर्थ का जो मास है वो भी ज्यादा होगा m इंटू जी. बट मून का जो है मास कम होता है, इसलिए द मून एक्सर्ट्स लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट. और जो मून का वेट है, सॉरी मून का जो मास है वो 1/6 है, इसीलिए मून का जो जी है वो कितना होगा? 1/6 होगा. कितना होगा? 1/6 होगा. Therefore the weight of an object would be 1/6 of the earth. तो जैसे मैंने मान लिया कि if a body has the weight of 600 Newton on earth, right? तो चूंकि मून पर जो वेट है वो कितना होगा? अर्थ का 1/6 होगा, तो मून पर उसी का जो वेट है वो कितना होगा? 100 न्यूटन. So the weight of an object would be 1/6 of the earth, right. So in this way we have studied force, also we have studied gravitational force, we have studied the Newton's law of gravitation, also we have studied gravitation due to acceleration, that is small g, and also we have studied mass as well as weight, right. So please revise these topics again and again. Now we will meet in next lecture. Till then, thank you.